ओके, वेलकम एवरीवन। बहुत दिनों के बाद हम जीके क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं वीडियो। हम 30 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मोस्टली इसमें स्टैटिक जीके होंगे। और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आल्सो कि आप भी पेपर और पेन ले लीजिए और यू आल्सो स्टार्ट डूइंग द गिविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। और फाइनल आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ वीडियो यू कैन काउंट कि कितने मार्क्स हुए हैं कितने नहीं हैं। ओके, सो we'll start from the first question. Like first question we have, what is the rank of India in Global Peace Index 2021 recently published? So in option we have 135, 4, 163 and 2. So India rank in GPI is, its short form is GPI, is 135. If you talk about the top nations country, that is Iceland. And like other option we have 4 and all. So second position is in this report is of New Zealand, and the 163 is of Afghanistan, which is in Asia. Okay, we'll move on the second question. Like second question we have, fight of boxes is the national game of which country? So in option we have Spain, China, USA, India. So its correct answer is Spain. स्पेन की ये स्पोर्ट्स है और वहाँ पे बहुत फेमस है। इसको बुल फाइटिंग भी कहते हैं। ये पुर्तगाल, फ्रांस, मैक्सिको एंड कोलंबिया में ज़्यादा फेमस है। Okay, we'll move on the third question. So third question we have like what is the full form of ICMR? Okay, so in option we have Indian Council of Medical Research, International Council of Medical Research, Indian Council of Meteorological Research, none. So its correct answer is Indian Council of Medical Research, which is currently in news due to the corona pandemic. Okay, we'll move on the fourth question. Fourth question is related to the virus. The study of virus is called cosmology, virology, neurology or anthropology. So its correct answer is virology. Okay, so father of virology is Martinus Benjanic. Okay, we'll move on the next question. Question number 5, which is also from the recent news, like World Test Championship क्रिकेट का जो हुआ है, फाइनल वाज वन बाय विच कंट्री, विच वाज हेल्ड इन न्यूजीलैंड. सो इन ऑप्शन वी हैव ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड न्यूजीलैंड. सो फाइनल वाज प्लेड बिटवीन द इंडिया एंड न्यूजीलैंड एंड इट्स करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड वन दिस मैच. ओके, ये 18 जून से लेके 22 जून तक खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच. और न्यूजीलैंड कैप्टन इज केन विलियमसन एंड इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट टीम कैप्टन इज विराट कोहली. ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव. सो आप लोग भी काउंट करते रहिए आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, कितने आपको आंसर पता हैं इस क्वेश्चन के. ठीक है, फाइनल विल सी. So Shenzhou 12 is a human space flight which will be launched by which dash country? So in option we have Russia, China, USA, Japan. So its correct answer is question number 6. Correct answer is China, which will be launched in 2024. Okay, and China space station is Tiangong. And Shenzhou 12 means divine vessels. Okay, we'll move on the next question. Like next question is from pedagogy, and object and material from daily life used as teaching aids is called. So in option we have relia, manuals, books, paintings. So its correct answer is relia. ठीक है, जो भी मटेरियल यूज होते हैं एज ए टीचिंग एड्स, टीचिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसको बोलते हैं रिलिया. ओके,
We'll move on the next question. So next question we have from bank like SBI unveils Kavach personal loan for. So in option we have education loan, mother health लोन, कोविड ट्रीटमेंट एंड बिजनेस लोन. सो इसका सही जवाब है कोविड ट्रीटमेंट. ये लोन कोविड ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है एसबीआई की तरफ से. ओके, 9th क्वेश्चन इज लाइक माई लैब्स साइंस अप विथ whom to create awareness as an ambassador for कोविशील्ड फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट. ये सेल्फ टेस्ट किट है, कोविसेल्फ नाम है इसका, जो कि कोविड टेस्ट के लिए यूज होगा. तो उसके एम्बेसडर कौन है? सो इन ऑप्शन वी हैव सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद एंड अक्षय कुमार. सो इसका सही जवाब है अक्षय कुमार. अक्षय कुमार इज ए फेमस बॉलीवुड एक्टर जिसने 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुका है और उनकी 100 आई थिंक 7वां पिक्चर था जोकर एंड इज अपॉइंटेड एज द लीड एक्टर. एंड उनकी अगर पहली फिल्म की बात किया जाए तो 101 से उन्होंने वो स्टार्टिंग की थी और उनका डेब्यू हुआ था 1987 में एज ए माइनर रोल, जो कि आज पिक्चर में था. ठीक है, ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लाइक क्वेश्चन नंबर 10, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इज. सो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इज चार्ल्स डार्विन. okay, so its answer is Charles Darwin. Okay, we'll move on the next question. We'll try to do the fast. Like urea, which is a fertilizer used in field, खेतों में यूज होता है किसानों द्वारा. केमिकल फार्मूला इज लाइक इन ऑप्शन वी हैव C5H4NH N4O3 and CH4N2O, H4N2O3, C27H46O. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी CH4N2O N2O. इसको कार्बामाइड भी बोलते हैं. एंड लाइक अदर ऑप्शन का बात कर लिया जाए तो जो ऑप्शन ए में है वो है यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला, और ऑप्शन सी में जो है वो है अमोनियम नाइट्रेट का, और डी में जो है C27H46O दैट इज केमिकल फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ओके, विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 12. इसका पेड ए स्पेस क्राफ्ट फॉर मास मिशन विल बी लॉन्च्ड इन ईयर. इसका पेड एक स्पेस क्राफ्ट है जो लॉन्च होगा मास पे कौन से ईयर में. सो इन ऑप्शन वी हैव 2024, 2021, 2022, 2023. सो दिस विल बी आल्सो लॉन्च्ड इन 2024 by NASA. NASA is a space research center of agency of USA. Its headquarter is in Washington DC, USA, and its admin is Bill Lancel, and the chief scientist of NASA is Jim Green. Okay, we'll move on the next question. Like question number 13 we have, what is the theme of UN Trade Forum 2021? So in option we have preparing for pandemic, B option we have build back better, and C option we have towards a green and inclusive recovery, and option D we have none. So इसका सही जवाब है towards a green and inclusive recovery. एंड अदर ऑप्शन की बात कर दिया जाए तो लाइक अदर ऑप्शन वी हैव प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक दैट इज़ द थीम ऑफ G20, एंड बिल्ड बैक बेटर इज द थीम ऑफ G7. ओके, विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
Which bank will be the lead sponsor and has biggest shareholder of NARCL? So in option we have RBI. RBI stands for Reserve Bank of India, State Bank of India, Union Bank of India and Canara Bank. So इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का कैनरा बैंक. कैनरा बैंक हैज़ 12% of stake in NARCL and इसका Canara Bank was established in 1906 and headquarter इसका है बेंगलुरु and its tagline is together we can. And like other option में UBI we have, UBI has 9% stake in NARCL. NARCL full form is National Asset Reconstruction Company Limited. ओके जो बैड लोन हो जाते हैं उनको रिकवरी करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है एंड इट इज़ लाइकली टू बी ऑपरेशनल बाय जुलाई 1 2021. तो इस महीने में होना था, मे बी स्टार्ट भी हो गया होगा. ओके विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव लाइक अकॉर्डिंग टू सिप्री. सिप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. So according to SIPRI, India has how many nuclear warhead? Like ये जो सिप्री इंस्टीट्यूट है ये जितने न्यूक्लियर वारहेड्स होते हैं सब कंट्री के उसका ये रिपोर्ट्स रखता है अपने पास और एक डेटा प्रोड्यूस किया है. सो उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि इंडिया का रैंकिंग क्या है, कितने वारहेड, हाउ मेनी न्यूक्लियर वारहेड्स इंडिया हैड. ओके सो in option we have 165, 156, 90 and 6255. so इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 156. so like other option we have 165 that is of Pakistan and like topmost, if you talk about the topmost country, that is Russia. Russia has 6255 and the second position is of USA and China has around 3000 plus nuclear warhead and 90 warhead of I think yeah that is from Israel. so Israel के पास 90 nuclear warhead है. Okay, we'll move on the next question. Next question we have question number 16. Who is president of Assam Cricket Council? So in option we have Sarvand Sonwal, B Saurabh Ganguly, C Jaisaw and option D we have Hemant Biswa Sharma. So इसका सही जवाब है हेमंत बिस्व शर्मा. ये वहाँ के हैं और ये 15th CM ऑफ आसाम भी हैं और वहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ भी हैं और जैसा BCCI के सेक्रेटरी हैं और सौरभ गांगुली BCCI प्रेसिडेंट हैं और सर्बानंद सोनोवाल एक्स CM ऑफ आसाम हैं. अभी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पोस्ट मिली है इंडियन मिनिस्टर का. ओके सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? सो इन ऑप्शन वी हैव प्रयागराज, लखनऊ, अहमदाबाद, कानपुर. तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद. अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो साबरमती रिवर के किनारे है. और मैनचेस्टर सिटी किसके किनारे है? तो मर्सी के किनारे है और यहीं से डांडी यात्रा शुरुआत की थी गांधी जी ने. ओके विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम pedagogy that is related to the teaching. Okay, what is the primary environment for raising children? So in option we have school, family, playground, society. So इन्वायरमेंट कहाँ से मिलता है बच्चे को? रेजिंग मतलब बड़े होते हैं बच्चे. पहले कहाँ बड़े होते हैं? फैमिली में बड़े होते हैं. तो इसका सही जवाब क्या है? फैमिली. ओके विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19.
विच लेडी फॉट अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक बहुत मशहूर और एक सोसाइटी के लिए बहुत घिनौना ट्रेडिशन था। तो उसके लिए एक सायरा बानो नाम की, जो ऑप्शन ए में है, उस लेडी ने कोर्ट में केस किया था इसके खिलाफ। सो इसमें लाइक तलाक में देखा जाए तो तलाक ट्रिपल तलाक 3 तरह के होते हैं, लाइक तलाक अहसन, तलाक हसन एंड तलाक बिद्दत। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं, तलाक बिद्दत। तो इसी के बारे में, इसी के अगेंस्ट सायरा बानो ने केस फाइल किया था, ठीक है। और ये ऐसा था कि लोग कोई 3 बार बोल देगा तो तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता था, इसलिए उसने इसके खिलाफ केस किया था, विच वाज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एनीवन, लाइक आर्टिकल 40 के अगेंस्ट ये जा रहा था। लाइक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल विच इंक्लूड्स इन आर्टिकल 12 to 35। तो उसके अगेंस्ट ये सब ट्रेडिशन चल रहा था, इसलिए कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और इसमें सायरा बानो का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, लाइक ऑप्शन सी वी हैव मलाला यूसुफजई, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड शी इज यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। Okay, we'll move on the next question. Question number 20, we have National Voters Day is observed on. So in option we have 23 Jan, 25th Jan, 12 Jan and 24 Jan. Question number 20, तो इसका सही जवाब है 25th Jan, या 25th Jan is observed as a National Voters Day. Like other option we have 23 Jan, that is the Jayanti of Subhash Chandra Bose, and 12th Jan is Youth Day, and 24th Jan is UP Day. Okay, we'll move on the next question. Next question we have like 21, fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin A, D, K, विटामिन बी एंड सी, विटामिन डी। सो इसका सही जवाब है विटामिन बी, विटामिन ए, डी, के आर फैट सॉल्युबल एंड विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। विटामिन डी वी गेट फ्रॉम सनलाइट एंड विटामिन ए इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ। ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, like Asian Dengue Day 2021 was observed on. So in option we have 16 June, 15 June, 21 June and 10 June. So इसका सही जवाब है 15 June. Okay, we'll move on the next question. Question number 23, like we have RTE Act 2009 was passed और इम्प्लीमेंटेड ऑन। मतलब RTE एक्ट 2009 है जो कब पास हुआ था, कब से लागू हुआ था, कब से इफेक्ट में आया था। RTE स्टैंड फॉर राइट टू एजुकेशन विच इज़ फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया एंड फॉर दिस RTE एक्ट वी गेट फ्री एजुकेशन, दैट इज़ फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। और इसके हिसाब से सारे बच्चे क्या है, फ्री एजुकेशन के हकदार हैं। अगर कोई डिसेबल्ड है तो 6 to 18 उसकी एज है। लेकिन कब से इफेक्ट में आया तो 1 Jan 2009, नो, ऑप्शन बी 1 April 2010। तो ये इसका सही जवाब है 1 April 2010 से ये इफेक्ट में आया था, ठीक है। ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लाइक प्राइमरी कलर्स आर। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट इसमें भी गलती हो जाती है। लेकिन ऑप्शन वी हैव रेड वाइट ब्लैक, ऑप्शन बी वी हैव रेड ग्रीन ब्लू एंड ऑप्शन सी वी हैव येलो ग्रीन रेड एंड ऑप्शन डी वी हैव वाइट रेड ऑरेंज। सो इसका सही जवाब है रेड ग्रीन ब्लू। ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 we have like egg mark
एग मार्क हेड ऑफिस इज इन विच सिटी ऑफ इंडिया? सो एग मार्क स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर मार्किंग, जो एग्रीकल्चर से जो भी आइटम्स निकलते हैं ये इंस्टीट्यूट उस पर मार्किंग करता है, ठीक है। सो ऑप्शन वी हैव न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, नागपुर एंड मुंबई। सो इसका सही जवाब है फरीदाबाद। इन नागपुर वी हैव अ सेंट्रल एग्रीकल्चर लैब and that's all, and all other city we have its branches, so head office is in Faridabad only. Okay, we'll move on the question number 26. So we have only 4 questions left. Okay, that is again from the pedagogy. Dyslexia is associated with which disorder of language learning skill? सो डिसलेक्सिया एक विकार है जो बच्चों में पाया जाता है, तो एक किसको इफ़ेक्ट करता है? रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग को, लिसनिंग को। सो ये इफ़ेक्ट करता है रीडिंग को। इससे जो बच्चा ग्रसित रहता है उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया, यू कैन नोट डाउन। एंड जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं, उस विकार को बोलते हैं, डिसऑर्डर को बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. लाइक 27 वी हैव, या स्टॉप, मैथमेटिक्स इज ए साइंस ऑफ, सो इन ऑप्शन वी हैव नंबर, लॉजिकल रीजनिंग, मैग्नीट्यूड, ऑल ऑफ दिस। सो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। मैथ में क्या करते हैं? ये सबका अध्ययन करते हैं, ठीक है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज आर्किमिडीज, and he was also known for the law of Liber, and he was a mathematician, physics, engineer, astronomy, mechanics, etc. Okay, we'll move on the next question. Next question we have, who is father of educational psychology? Okay, so in option we have Jean Piaget, John Dewey, Edward Lee Thorndike and Kohlberg. These all are a psychologist और एजुकेशनिस्ट हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ही वाज एन अमेरिकन psychologist, and he studied from Columbia University, also known for law of effect, behavior modification, etc. Okay, we'll move on the next question. Next question we have like from book My Country My Life. Book is written by that is autobiography of one of these leaders. In option we have Lal Krishna Advani, Sarvepalli Radhakrishnan, Rajendra Prasad, सरोजनी नायडू। सो इसका सही जवाब है लाल कृष्ण अडवाणी, जो कि बीजेपी के वो थे, लीडर थे, और ये हैं अभी जिंदा हैं, और ये 2002 से लेके 2004 तक डिप्टी पीएम रहे। एंड ये बुक 2008 में पब्लिश हुई थी, अनमिल हुआ था बाय अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे प्रेसिडेंट थे। ओके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू वाज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, वी विल मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. So last question we have these two portals of students, e-Pathshala and e-Mulyankan study platform is launched by which government? So in option we have government of India, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट. सो इसका सही जवाब है उड़ीसा गवर्नमेंट. ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, दोनों पोर्टल. और ये लॉन्च हुआ था दिनेश शर्मा, जो वहाँ के स्कूल एंड मास एजुकेशन मिनिस्टर हैं. और वहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक. सो ये दो पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट हैं. लाइक कोविड-19 में
ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक मैक्सिमम ऑनलाइन पढ़ाई ही हो रही है ड्यू टू कोरोना, स्कूल्स तो बंद ही हैं. So we have completed all 30 questions, so I hope, and please assess yourself and tell me your answer and your marks in comment box after this video. And I hope you also enjoyed, and आप लोग मैक्सिमम ज़्यादा किए होंगे, जो नहीं किए होंगे मे भी आप लोग को कुछ नया कुछ सीखने को भी मिला होगा इसमें. ओके, थैंक्स a lot, thanks for watching.